pair of linear equation in two variables, pair of linear equation into variable, pair of linear equation into variable, two variable, pair of linear equation into variable. ठीक है ना? A pair of linear equation in two variables. Okay, everyone, the pair of linear equation in two variables, where we are going to make the pair of linear equation in two variables. अब मेरे को बताइए, in the 9th standard we have just look at and listen about the linear equation. ठीक है ना? Why others have not joined till now? Samruddhi have not joined. Why Samruddhi have not joined? Huh? Pair of linear equation into variable. Now listen everyone please. Pair of linear equation into variables. अब मेरे को बताइए कि linear equation into variables कैसे होता है? linear equation into variables. Now listen please everyone. linear equation into variables कैसे होता है? linear equation into variables. Now okay, अब मेरे को बताओ, सबसे पहला हेडिंग गिव द हेडिंग गाइस, द linear equation into variables. सबसे पहला हेडिंग the linear equation, EQUATION, linear equation into variables. सबसे पहला heading, the linear equation into variables. सबसे पहला heading, that is something called as the linear equation into variables. What do you mean by the linear equation into variables? बोलो तो, linear equation into variables क्या होता है रे? linear equation into variables, tell me. Yes, anyone please? linear equation into variable क्या होता है? Equation with two variables and degree of the equation is 1. क्या बोला? बोलो. A equation with two variables and the degree of the polynomial is 1. Okay, the degree of the polynomial is 1. Okay, fine everyone. The degree of the polynomial is 1. ओम अपना mic off करना please. The degree of the polynomial is 1. The degree of the polynomial is 1. Am I audible to each and everyone? ठीक है. The degree of the polynomial is 1. Yes, sir. Now, listen everyone. The linear equation into variable यानी क्या? An equation which is in the form of, now listen please all of you. An equation which is in the form of, an equation which is in the form of, which is in the form of, an equation which is in the form of, the equation which is in the form of, the equation which is in the form of ax plus by plus c, ax plus by plus c is equal to 0, or ax plus by is equal to c. Okay everyone guys, constant इधर भी रह सकता है या तो इधर भी रह सकता है. ax plus by plus c is equal to 0 or ax plus by is equal to c, where a, b, c are constants, where a, b, c, a, b and c are constants, matlab are real numbers, where a, b, c are real numbers. Now listen everyone guys please, where a, b and c are real numbers, where a, b and c are real numbers, and ये कंडीशन होती है इसकी a, b, c and real numbers. ठीक है ना? a, b, c are real numbers and a and b both not equal to 0. ये कंडीशन होनी चाहिए. a and b both not equal to 0. a and b both not equal to 0. a and b both not equal to 0. Okay everyone, a and b both not equal to 0 and are not equal to 0. ठीक है ना? ठीक है, a and b are both not equal to 0 और इसके साथ कंडीशन होनी चाहिए एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. ये कंडीशन होनी चाहिए. ये कंडीशन, ये पहली वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है. ओके एवरीवन, अब मैं को बताओ, जो इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी और x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रहेगा, या तो फिर ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इस फॉर्म में रहेगा, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स. इसको क्या कहेंगे हम? वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है ना? इच इन द फॉर्म ऑफ ए बी और एक्स प्लस बी वाई इज
is equal to c is called as linear equation in two variables, is called as linear equation in two variable, is called as linear equation in two variable, is called as linear equation in two variable, is called as linear equation in two variable. Now listen everyone, is called as linear equation in two variable. All of you please, all of you are requested to please write down. अब मेरे को बताइए, इसका हमको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा. व्हाट इज द एग्जाम्पल गाइस प्लीज. ना लिसन एवरीवन, व्हाट इज द एग्जाम्पल. अब मेरे को बताओ, इसका एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे. रूट टू एक्स प्लस √3y. ओके एवरीवन, इज इक्वल टू 5u और 5x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. देखो ये 9th स्टैंडर्ड में हुआ है, मैं रिवाइज कर रहा हूं. ओके एवरीवन, अब मेरे को बताओ -1/2x प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. गेटिंग एवरीवन. ओके एवरीवन, -1/2x okay plus 7y minus 8 is equal to 0. Okay, this is something called as a linear equation in two variables. Okay, linear equation in two variables. Okay everyone, now आप ऐसा भी लिख सकते हो -6x minus 5y plus 7 is equal to 0. 4 एग्जाम्पल मैंने लिखे, एक आप लिखना, 5 एग्जाम्पल्स कर देना. Okay everyone, this is something called as the linear equation, the equation which is in the form of ax plus by plus c is equal to 0 or ax plus by is equal to c is called as the linear equation in two variable, where a, b, c are real numbers, a and b both not equal to 0 and a square plus b square is not equal to 0. ये कंडीशन होनी चाहिए. समझ में है क्या. अब मेरे को बताओ, ये इसके एग्जाम्पल्स है, और द डिग्री ऑफ द linear equation in two variable is always 1. Okay, now all of you please write down. सर. हाँ Sir, someone is texting is Robbie. ओके फाइन. क्लास का ये करते. क्लास शुरू है. सॉरी. Join the class everyone in on time guys please. Is my humble request to you. सर. हाँ बोलो. पानी. हाँ सर C0 हो सकता है क्या? C0 हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता. वो इससे पास होगा, फिर ओरिजिन से पास हो सकता है. C0 हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता. तो सर फिर ऐसे होगा ax plus by is equal to 0. हाँ हो गया ना. हाँ होगा, सही है वो. मैं ऐसे भी तो हो सकता है a plus b is equal to c. a plus b is equal to c नहीं, ऐसे कैसे होगा. ax plus by is equal to c लिखा है ना हमने. ओके एवरीवन, नाउ लिसन प्लीज. देखो मैंने इक्वेशन लिखा है 3x plus 4y is equal to 0. Okay everyone, now y is equal to 5x, this is also a linear equation. समझ में है क्या. y is equal to 5x, this is also a linear equation. All of you agree? Okay everyone, this can be arranged in the form of x plus by plus c is equal to 0. Okay, c can be a 0. Okay everyone, सर सर ax plus by equals to c हो सकता है ना. हो सकता है. तो सर 3x plus 4y equals to 0 क्यों नहीं हो सकता. हो सकता है ना, मैंने लिखा है ना. तो सर आपने बोला ना c equals to 0, मतलब equals to 0 नहीं चाहिए करके. नहीं, c is equal to 0 चलता है, बोला ना मैंने. a और b 0 नहीं चाहिए. a और b बोथ नॉट इक्वल टू 0. a और b की वैल्यू दोनों के दोनों 0 नहीं चाहिए. a की वैल्यू भी 0 चल जाएगी, b की वैल्यू अकेली भी 0 चल जाएगी, लेकिन a और b दोनों एक साथ 0 नहीं चाहिए. समझ में आ रहा है ऐश्वर्या. ओके हाँ सर.
सर हाँ बोलो। सर ax plus by is equals to -6 क्यों नहीं लिखता? लिख सकते हैं वैसा, प्लस सी इज इक्वल टू -6, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके एवरीवन, ये पहला ही एक तो जनरल फॉर्म है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ax प्लस 3x प्लस 4y, ax प्लस बी वाई। ओके एवरीवन, ax प्लस बी वाई। ओके एवरीवन, तो ये -c ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0, ये दूसरा फॉर्म नहीं है, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के वक्त इसको काम में आएगा। लेकिन जनरल फॉर्म यही है, ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल टू 0, -c भी लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके एवरीवन, ठीक है ना। लेकिन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये जनरल फॉर्मेट है। गेटिंग एवरीवन, ये भी एक फॉर्म हो सकता है, ये ऐसा हमारा कहना है, समझ में आया क्या? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू c, ये भी एक फॉर्म हो सकता है। ओके एवरीवन, ऑल ऑफ यू, अल्टीमेटली x प्लस बी वाई इज इक्वल टू c भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। गेटिंग एवरीवन, बराबर है ना? लिसन एवरीवन प्लीज, ऑल ऑफ यू हैव रिटन, होप सो। ओके, अब हम देखेंगे दैट इज समथिंग कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाउ गाइस प्लीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल ऑफ यू लुक एट बोर्ड एवरीवन, graphical representation, all of you have written graphical representation. Now listen everyone guys please, all of you, ठीक है ना? अगला लिखना पॉइंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना, ठीक है ना? 9 का सिलेबस ले रहे हैं हम फिलहाल, ठीक है? 10th पे आने के अभी तक के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या तो फिर उसके पहले लिखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले लिखो ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले लिखो, डायरेक्ट ग्राफिकल के आगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, solution of linear equation into variable, solution of linear equation into variable, solution of linear equation in solution of linear equation into variable. Yes, this is the heading. Okay everyone please, solution of linear equation into variables, all of you please look at solution of linear equation into variable. Now consider it. Okay everyone, consider solution of a linear equation into variable. Now listen everyone please, अब मेरे को बताइए, consider the linear equation, consider a linear equation, consider a linear equation, consider a linear equation. Okay, consider a linear equation, 2x plus 3y is equal to 12, 2x plus 3y is equal to 12. Now consider the linear equation 2x plus 3y is equal to 12. Now all of you please, if we are going to consider that if x is equal to, now all of you, मैं रिवाइज कर रहा हूँ 9 का सिलेबस, if x is equal to 1 and y is equal to, take any value, मेरे को बताइए y is equal to, बोलो रे, x is equal to 1 और y is equal to, बोलो 2, let x is equal to 1 and y is equal to 2. Now guys, all of you, x is equal to 1 and y is equal to 2, then LHS is equal to, okay, LHS कितना है 2x plus 3y, LHS कितना है 2x plus 3y, 2 into x की वैल्यू कितनी है 1 plus 3 into y की वैल्यू कितनी है 2, all of you, 2 into 1 plus 3 into y, okay everyone, 2 into 1 plus 3 into y, so one have joined or not class? 2 into 1 plus 3 into y कितना होगा रे ये 2 plus 3 2 6 is equal to 2 plus 6 that is 8. मेरे को बताओ LHS is equal to 8 है और RHS is equal to क्या है रे? RHS is equal to क्या है? ओके, RHS is equal to क्या है बोलो? RHS is equal to क्या है? 12. मेरे को बताओ as the LHS is not equal to RHS, therefore मेरे को बताना x is equal to 1 and y is equal to 2. ये सॉल्यूशन हो गया क्या रे गिवन लीनियर इक्वेशन के? बोलो नहीं सर, नहीं, ठीक है ना? as LHS is not equal to RHS, मेरे को बताओ LHS और RHS इक्वल नहीं है, therefore x is equal to 1 and y is equal to 2 are not the solution, are not the solution, are not the solution,
are not the solution of 2x plus 3y is equal to 12 are not the solution 2x plus 3y is equal to 12. Okay everyone, okay, are not the solution of 2x plus 3y is equal to 12. Let's proceed for the अब आगे की ओर प्रस्थान करेंगे ना, आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। मेरे को बताइए दूसरा हम कुछ लेते हैं, देखना दूसरा कुछ लेते हैं। इफ नाउ आई विल टेक द नंबर इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू कितना आएगा 4। इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू कितना आएगा 4। ओके एवरीवन, इफ x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू कितना आएगा, ओके 4, देन LHS इज इक्वल टू कितना है रे 2x प्लस 3y। LHS इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। 2x मतलब कितना आएगा 3 प्लस 3 इंटू y मतलब कितना आएगा 4 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 3 4 जा 12, 12 प्लस 6 18। ओके एवरीवन, 12 प्लस 6 18। LHS कितना है 18 है। RHS कितना है 12 है। LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। मेरे को बताना LHS अगर RHS के बराबर नहीं है, therefore x is equal to 3, therefore x is equal to 3 and y is equal to 4। ये सॉल्यूशन हो गए क्या रे? बोलो, are not the solution, are not the solution, are not the solution। Okay everyone, are not the solution of, tell me, are not the solution of 2x plus 3y is equal to 12, are not the solution 2x plus 3y is equal to 12। अब मेरे को बताइए नेक्स्ट, अब मेरे को बताना नेक्स्ट, ऑल ऑफ यू वी विल लुक एट फर्दर। अब मेरे को बताना नेक्स्ट, ठीक है, अब मेरे को बताओ नेक्स्ट वी विल टेक इट एज, नेक्स्ट वी विल टेक इट इफ x is equal to, if 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 x is equal to, x is equal to Sir, x is equal to 3 and y is equal to 2। now LHS is equal to कितना आएगा रे 2x plus 3y is equal to, मेरे को बताओ ये 2 इंटू x की वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस y की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 3 जा कितना आएगा 6 प्लस 3 2 जा कितना आएगा 6 इज इक्वल टू कितना आएगा 12। मेरे को बताइए LHS इज इक्वल टू 12 आ गया और RHS भी 12 है। मेरे को बताओ दी गई जो वैल्यूज है देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। नाउ टेल मी LHS इज इक्वल टू RHS है, तो दी गई वैल्यूज जो है, दी गई वैल्यूज जो है देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। ये जो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 ये क्या हो गए R, क्या हो गए R, बोलो are the solution, are the solution of 2x plus 3y is equal to 12, 2x plus 3y is equal to 12। मैं को बताओ मैं आखिरी इस पे आता हूं ना, लिसन एवरीवन प्लीज, आखिरी एग्जांपल्स लेते हैं ना। अब मैं को बताना कि नेक्स्ट एवरीवन प्लीज, ठीक है, नेक्स्ट एवरीवन प्लीज ऑल ऑफ यू, इफ x is equal to, if x is equal to 0, if x is equal to 0, if x is equal to 0, देखो x की वैल्यू you can take it any real number, any real number means rational or irrational, root 2 root 3 root 5 minus 1 minus 2 minus 1 upon 5 minus 1 upon 7, any value you can take it, real values। okay, I will take it x is equal to 0 and y is equal to 4। मैं को बताइए LHS फाइंड आउट करिए 2x plus 3y, LHS फाइंड आउट करिए 2x plus 3y, 2 into कितना आएगा 0 प्लस 3 into कितना आएगा 4 इज इक्वल टू 2 into 0 कितना आएगा 0 प्लस 3 into 4 कितना आएगा 12 इज इक्वल टू कितना आएगा 12। LHS इज इक्वल टू 12 and RHS is always also is equal to 12, therefore the LHS is equal to RHS। now tell me LHS is equal to RHS, therefore x is equal to 0, therefore x is equal to 0 and y is equal to, tell me everyone please, x is equal to 0 and y is equal to 4 is, bolo, is the solution of 2x plus, is the solution of 2x plus 3y is equal to 12, 2x plus 3y is equal to 12 is the solution of 2x plus 3y is equal to 12। now
टेल मी, मेरे को बताइए, हम पहले दूसरा तीसरा चौथा एग्जांपल ये करना, जब LHS इज इक्वल टू जो, मेरे को बताइए जो एक्स और वैल्यू, जो एक्स और वाई की वैल्यू हमको जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी मतलब क्या, LHS इज इक्वल टू RHS देगी, वो वैल्यूज क्या रहेगी रे, वो वैल्यूज क्या रहेगी, उस इक्वेशन की सॉल्यूशन होगी। अगर हमको LHS इज इक्वल टू RHS नहीं देती तो वो वैल्यूज वो वैल्यूज गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं रहता है। ऑल ऑफ यू प्लीज समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, मेरे को कोई बता पाएगा क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कितने सॉल्यूशंस रहते हैं? लिख लीजिए सभी लोग। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। ओके, क्यों रहते हैं, हम इस पे आते हैं। ओके प्लीज इसको ये पॉइंट देके लिखना। समृद्धि have joined. हाँ बोलो सर वाई देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बताता हूँ ना मैं क्यों। बताता हूँ, ये 9th स्टैंडर्ड में हो चुका है, हम रिवाइज कर रहे हैं, बस इसी को लेके सामने जाने वाले हैं, ये चीज ध्यान में रखना। बताता हूं मैं क्यों। फाइन ऑल ऑफ यू। ऐश्वर्या तुमको पता है क्या कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रहते करके? हाँ सर। पता है? Now all of you please listen, 2x plus 3y is equal to 12. Okay, the infinite number of solutions are there. How we are going to calculate? Now अभी हम इस पे कंक्लूजन पे आते हैं। Now we will come to the conclusion guys that we will come to the conclusion that the pair of linear equation, the values of x and y, getting everyone? ऐसे नीचे लिखना, the values of x and y which satisfy the equation, the values of x and y which satisfy the equation, नीचे लिखना ऐसा, मेरे साथ में लिखिए, which satisfy the equation means which satisfy the equation, ठीक है ना, that is which makes LHS is equal to RHS, मतलब x और y की ऐसी वैल्यूज जो LHS which makes LHS is equal to RHS, x और y की ऐसी वैल्यू जो LHS और RHS को इक्वल करती है। ओके ठीक है, which makes LHS equal to RHS are the solution of linear equation in two variable, are the solution of linear equation in two variable, are the solution of linear equation in two variable, are the solution of linear equation in two variable, in two variable, are the solution of linear equation in two variable. All of you write down please. x और y की ऐसी वैल्यूज जो हम पुटअप करने के बाद में, लीनियर इक्वेशन में पुटअप करने के बाद में जो LHS और RHS को सेम करता है, जो LHS और RHS को क्या करता है, सेम करता है, वो क्या रहेगा, आर द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। Okay everyone, the values of x and y which satisfy the equation, that is which makes the LHS are equal to RHS. For example, हमने x is equal to 3 पकड़ा और y is equal to 2 पकड़ा, हम जब लीनियर इक्वेशन में भरेंगे 2x plus 3y में, तो हमको क्या मिलता है, is equal to RHS मिलता है, इसलिए x is equal to 3 और y is equal to 2, ये क्या है, सॉल्यूशन है 2x plus 3y is equal to 12 के। All of you agree? ओए सर हाँ बोल। सर
हाँ RHS इक्वल टू RHS लिखा है वहाँ पे, कहाँ पे? वो आपने जो नोट लिख के दिया वहाँ पे। LHS इज इक्वल टू RHS है, वो L है, L। LHS इज इक्वल, नहीं समझा। अरे मेरे को बता, x इज इक्वल टू 3 है ओम, द वैल्यूज ऑफ x एंड y, Yes, sir. ठीक है ना, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 है। ऐसी वैल्यूज जो अब LHS इज इक्वल टू RHS बनाती है, वो x और y की वैल्यूज गिवन इक्वेशन के क्या रहते हैं रे ओम? हाँ क्या रहते हैं? सॉल्यूशन रहते हैं। बस वही हमने इंग्लिश में लिखा है, समझ में आया? सेटिस्फाई करना मतलब क्या? LHS इज इक्वल टू RHS बनाना, समझ में आया क्या? ओके Yes, sir, समझ गया। ग्राफ है क्या किसी, सबके पास ग्राफ पेपर है क्या? सभी के पास, ऑल ऑफ यू? हाँ Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जिसके पास होगा कृपया इस्तेमाल करें, नहीं होगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। पेपर है। हाँ ठीक है, नहीं होगा तभी भी दिक्कत नहीं है, ग्राफ पेपर निकाल के रखना, नहीं होगा तभी भी सर कोई। अभी, हाँ 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 अभी, सर अभी क्या? हाँ अभी नहीं होगा तो जबरदस्ती कैसे लाइए मत, नहीं होगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। समृद्धि हैव ज्वाइन द क्लास और नॉट? समृद्धि, समृद्धि हैव ज्वाइन द क्लास और नॉट? All of you. Now, solution of the linear equation in two variables. All of you have written. Now, अब मेरे को बताइए next please. Next give the heading guys. All of you can write down. Finding the, next give the heading. Finding the solutions of the representing. Finding the solution. Finding the solution of. Finding the solution of linear equation in two variable. Finding the solution of linear equation in two variable. Finding the solution of linear equation in two variable. Finding the solution of linear equation in two variable and representing it on graph, and representing it on graph. Okay everyone, please give the heading. All of you please give the heading. हाँ बोलो। सर आपने वो नहीं बताया ना, why there are infinite solutions? हाँ बस मैं अभी उसका सवाल जवाब देता हूँ ना, मैंने बताया ना कि आगे बताता हूँ करके ओम, ठीक है ना, इसमें है ना वो क्या? हाँ Yes, sir. ओके फाइन। फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब मेरे को बताओ हम क्या, कंसिडर द लीनियर इक्वेशन, consider a linear equation in two variable. Consider the linear equation in two variable. Now listen everyone. Consider the linear equation in two variable. Consider the linear equation in two variable. Now listen everyone please. Consider the linear equation in two variable. क्या consider करेंगे? linear equation in two variable. कौन सा? पहले का इक्वेशन लेते हैं 2x plus 3y is equal to 12। अब मेरे को बताओ इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या ऐसे करेंगे क्या? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4 भरो, फिर LHS ऐसे क्या ढूंढते जाएंगे क्या? कितना समय लगेगा? समझ में आ रहा है क्या? कितना समय लगेगा? ऐसे अगर हम ढूंढते जाएंगे, ऐसे अगर हम ढूंढते जाएंगे कि x इज इक्वल टू 0 भरो, y इज इक्वल टू 4 भरो, ऐसा हम ढूंढते जाएंगे, LHS इज इक्वल टू RHS बनाने की कोशिश करेंगे तो कितना समय लगेगा? बराबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके
तो अभी मेरे को बताओ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। स्टेप नंबर 1 जरा ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है, आगे भी काम में आने वाली है हमको। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से सुनना। मेरे को बताइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, y वाला टर्म जनरली 90% हम y वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं और बाकी सभी को राइट हैंड साइड सरकाते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो, ओए हेलो, गेटिंग एवरीवन? y वाला टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं और बाकी सबको राइट हैंड साइड सरकाते हैं, ठीक है ना? क्यों करते हैं ऐसा आपको यह पता चलेगा। मेरे को बताइए कैसे तय करेंगे कि y को लेफ्ट हैंड साइड रखना है कि x को लेफ्ट हैंड साइड रखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूं, देखना इधर। नाउ इट इंप्लाइज 2x + 3y = 12। मेरे को बताओ y अकेला लेफ्ट हैंड साइड पे रहना चाहिए, y अकेला लेफ्ट हैंड साइड पे रहना चाहिए। उसके पास वाले पहले धीरे धीरे हटाओ, +2x लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो क्या होगा रे? 3y = +2x राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो क्या होगा? 12 माइनस, बोलो, +2x राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो क्या होगा? +12 माइनस क्या होगा रे? बोलो, 12 माइनस 2x। ओके, हम इट इम्प्लाइज, अब मेरे को बताइए y के साथ में 3 अकेला है, हमको क्या रखना है? एक तो लेफ्ट हैंड साइड में y अकेला रखना है या तो x अकेला रखना है। जो इजी होगा अकेले रखने में उसको हम रखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप नहीं करेंगे, नहीं तो गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। y = जरा ध्यान से देखना, 3 मल्टीप्लीकेशन में 12 माइनस 2x/3। नाउ लिसन एवरीवन प्लीज, ऑल ऑफ यू, मेरे को बताइए, ठीक है ना? हमने y को लेफ्ट हैंड साइड रखा, जो वेरिएबल हमको इजी लगता है लेफ्ट हैंड साइड रखने में उसको हम रखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे को बताना अभी x - 2y = 5। टेल मी गाइस, लेफ्ट हैंड साइड में x रखेंगे कि y रखेंगे? ओए, x रखेंगे। क्यों रखेंगे x? क्योंकि x = -2y राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, 5 + 2y डायरेक्ट मिलता है, x हमको इजीली मिलता है। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं? ओके एवरीवन, तो मेरे को बताओ जैसे जैसे हम y की वैल्यू भरते जाएंगे वैसे वैसे हमको x मिलते जाएगा। जरा ध्यान से सुनना, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब मेरे को बताना ओम, इधर देखना रे, इधर देख, मेरे को बता तू अभी 5x - y = 4। मेरे को बता तू y को एक साइड लेगा कि x को एक साइड लेगा? ओम, y को, वेरी गुड, -y को एक साइड लेंगे। अब मेरे को बताओ जिसको एक साइड लेना है उसके साथ नेगेटिव साइन नहीं चाहिए, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो +4 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो, 5x - 4 = -y राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा तो +y होगा। तो मैं y = this one, therefore y = 5x - 4। x की वैल्यू भरो, वैसी वैसी y की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। बराबर है? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अब मेरे को बताओ 2x + 7y = 8 ऐसा है, 2x + 7y = 8 ऐसा है। मेरे को बताओ x को वो लेफ्ट हैंड साइड रखूं कि y को लेफ्ट हैंड साइड रखूं रे? बोलो। x को लेफ्ट हैंड साइड लगता हूं क्योंकि 2 छोटा है, तो फिर डिवाइड में 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमको समझ में आना चाहिए, किसी को भी लेफ्ट हैंड साइड रखा तभी भी चलेगा, लेकिन हमको इजी कौन सा पड़ता है ये हमको समझ में आना चाहिए जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तब। गेटिंग एवरीवन? जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तब। ऑल ऑफ यू प्लीज नाउ लुक एट एवरीवन, 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है, किसी को कोई दिक्कत होगी तो मेरे को बताइए। अभी यहाँ पे मेरे को बताइए, आप बोलोगे x को भी लेफ्ट हैंड साइड हम रख सकते थे? हाँ, क्यों नहीं, जरूर रख सकते थे हम। आप x को भी रख सकते हैं, y को, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि y को लेफ्ट हैंड साइड, हम हमेशा नहीं, मतलब x एकदम ही इजी होगा लेफ्ट हैंड साइड में रखने के लिए, एक साइड रखने के लिए, तो हम x को रखेंगे, नहीं तो जनरली y को रखते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। आप x की निकालो, y की निकालो, कोई भी नहीं। अब मेरे को बताइए, मेरे को बताओ अभी वैल्यूज कैसे सिलेक्ट करते हैं? अब देखना ओम, तेरे सवाल का जवाब मिलने जा रहा है अभी। मेरे को बताना x की वैल्यू हम अगर जो जो भरते जाएंगे, x की वैल्यू मेरे को बता ओम, इफ x = बोल अपने मन से वैल्यू बोल, x = हेलो ओए
3। अब मेरे को बता x की वैल्यू मैं भरता हूं तो मेरे को बता y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3। ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा रे? ओए मैं x की वैल्यू भरूंगा तो मेरे को किसकी वैल्यू मिलेगी रे? आ? आ? किस y की वैल्यू मिलेगी, बराबर है ना? मैं x की वैल्यू, और बता मेरे को x की वैल्यू मैं √2 भी रख सकता हूं, मैं x की वैल्यू -1/√2 भी -1/2 भी रख सकता हूं, x की वैल्यू मैं -10 भी रख सकता हूं, x की वैल्यू मैं -11 भी रख सकता हूं। मेरे मन में जो आए वो मैं x की वैल्यू रख सकता हूं। रख सकता कि नहीं रख सकता? ओए हेलो, रख सकता कि नहीं रख सकता? रख सकता। अब मेरे को बताइए, मैं x की वैल्यू जैसे जैसे निकलते जैसे जैसे रखते जाऊंगा वैसे वैसे मेरे को y की वैल्यू मिलती जाएगी। ओए बराबर है ना? x की वैल्यू मेरे को बताओ, मेरे को कितनी वैल्यूज मिल सकती है y की? ओए कितनी वैल्यूज मिल सकती है y की? इनफाइनाइट वैल्यू मिल सकती है। गेटिंग एवरीवन? इनफाइनाइट वैल्यू मिल सकती है। मेरे को बताइए, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कितने सॉल्यूशंस रहते हैं रे? कितने सॉल्यूशंस रहते हैं ओम? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस रहते हैं। समझ में आया क्या तेरे को? क्या ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहते हैं। सभी को समझ में आया क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। लिख के रख दो मार्जिन के ऊपर पॉइंट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। लीनियर इक्वेशन। समृद्धि मेरे बारात में आ रहे क्या तुम? समृद्धि मेरे बारात में आ रहे हो क्या? नहीं सर। नहीं, फिर नहीं, मेरे को ऐसे लगा था। सर वो मम्मी हॉस्पिटल गई थी ना, तो अभी आई थी, तो इसलिए लेट हो गया। ओके फाइन, ठीक है ना, जोक्स अपार्ट, मैं मजाक कर रहा था, तुमने सीरियसली ले लिया। यस सर। देखिए देखिए, अब देखिए, मेरे को बताइए, अब देखो ना इसके सॉल्यूशंस। अब मेरे को बताओ, मैं चाहूं तो x की वैल्यू मैंने ऐसा क्यों लिया, y को एक साइड और x को एक साइड क्यों लिया, ये भी आपको समझ में आया क्या? y को एक साइड, अरे क्योंकि मेरे को इजी जाएगा अभी सॉल्यूशन निकालने में, नहीं तो मैं कितना ढूंढते बैठूंगा, बराबर है कि नहीं? कितना ढूंढते बैठूंगा x और y की वैल्यू कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है करके। अब सॉल्यूशन निकालना है ना, सॉल्यूशन निकालना है ना। अब x की वैल्यू कैसे सिलेक्ट करना, जरा ध्यान से देखना, उटपटांग जैसे कोई भी सिलेक्ट मत करना x की वैल्यू। ओके एवरीवन, ध्यान से देखना कैसे सिलेक्ट करना x की वैल्यू। कैसे सिलेक्ट करेंगे हम? x की वैल्यू वैसे भरेंगे ताकि न्यूमरेटर का ऑपरेशन करने के बाद में वो एंटायर 3 से डिवाइड हो। मतलब हम x की वैल्यू वैसी भरेंगे, इंटीजर्स के फॉर्म में भरेंगे। ऑल ऑफ यू प्लीज डू लिसन। ओए, इंटीजर्स के फॉर्म में, ताकि ऐसे इंटीजर भरेंगे ताकि वो 3 रिमाइंडर है ना। ओए हेलो, समझ में आया क्या? 3 रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर नहीं, डिनोमिनेटर है ना 3, तो ये x की वैल्यू वैसे भरेंगे ताकि 12 माइनस 2x करने के बाद में वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, बोलो रे पहली x की वैल्यू, इफ x इज इक्वल टू, बोलो x इज इक्वल टू, उटपटांग जैसे कुछ भी भर सकते हैं। बोलो -1 9। 9 भरने से क्या होगा? वो 3 से डिवाइड होगा। लेकिन मैं इतने दूर की क्यों सोचूंगा? मेरे पास 0 भी तो ले सकता हूं, मैं ले सकता कि नहीं ले सकता? क्या ओए ओम, 0 भी तो ले सकता हूं। अब 0 लेने के बाद में भी वो 3 से डिवाइड होगा। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान में रखना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि हम वैल्यूज भी ऐसी लेंगे कि 0 to -5 के रेंज में, 0 to 5 के रेंज में ऐसी वैल्यूज लेंगे, क्योंकि 9 को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना थोड़ी सी तकलीफ वाली बात होती है। गेटिंग एवरीवन? ठीक है, अब मेरे को बताओ, इफ x इज इक्वल टू 0 इट इंप्लाइज y इज इक्वल टू कितना है रे? 12 माइनस 2x अपॉन 3। इट इज इक्वल टू, इट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 12 माइनस x की वैल्यू 2 इंटू, धीरे धीरे सॉल्व करना, मेरे को डर लगता है यहाँ पे
ये गलत होने का। हाँ बोलो। हाँ यस। y equals to 4. y इज इक्वल टू 4। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना आएगा रे? 12 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज 0 अपॉन 3। धीरे धीरे सॉल्व करो। y इज इक्वल टू कितना आएगा? 12 अपॉन 3 इट इज इक्वल टू 4। जब x की वैल्यू, मेरे को बताइए, जब x और y की वैल्यू, जब x की वैल्यू क्या रहेगी? जब x की वैल्यू 0 रहेगी तो y की वैल्यू 4 रहेगी। ओके एवरीवन, समझ में आया क्या? इस तरीके से सॉल्यूशन निकालना है। अब मेरे को बताइए और बताइए, x की वैल्यू जैसे जैसे भरते जाएंगे, x की वैल्यू कैसे सिलेक्ट करनी है? ऐसे सिलेक्ट करनी है ताकि 12 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू भरने के बाद में एंटायर टर्म 3 से डिवाइड होना चाहिए। जिसको आता है वो प्लीज आगे बढ़े, जिसको आता है वो प्लीज आगे बढ़े। अब मेरे को बताओ, हेलो बोलो एवरीवन, x की वैल्यू बोलो x की वैल्यू, ओए x की वैल्यू -1। यस, नेगेटिव भी ले सकते हैं ऐश्वर्या जी, वाह मजा आ गया। ठीक है ना, बोगैम्बो खुश हुए। गेटिंग एवरीवन? नाउ लिसन एवरीवन प्लीज, y इज इक्वल टू 12 माइनस, ऐश्वर्या जी आपके बोलने पे मैंने ली है, लेकिन वो एग्जैक्टली 3 से डिवाइड तो हो जाएगा ना? ऐश्वर्या जी नहीं होगा, ऐश्वर्या जी नहीं होगा। x की वैल्यू भर के तो देखो आप, नहीं होगा। हमको देखो, ये वैल्यू गलत नहीं है आपकी ऐश्वर्या जी, लेकिन हमको इंटीजर चाहिए। क्यों चाहिए ये आपको अभी समझ में आएगा आगे जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो दूसरा कुछ बोलो, नेगेटिव बोला ही है तो नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, एनी रियल नंबर यू कैन टेक इट। बोलो रे, x इज इक्वल टू 0 हो गया, बोलो। -3 लू क्या? -3 लू? यस, चलो -3 लेते। ऐश्वर्या जी मजा नहीं आया। ओके नाउ 12 माइनस, बोलिए 12 माइनस 2 इंटू एक्स। हाँ -3 माइनस नेगेटिव वैल्यूज ऑलवेज पुट इन ब्रैकेट 3। ओके, ऐसी वैल्यू लेंगे ऑपरेशन करने के बाद में। y की वैल्यू फ्रैक्शन में कदापि नहीं आनी चाहिए, वो इंटीजर्स में ही आनी चाहिए। गेटिंग? ठीक है ना, फ्रैक्शन में आती है, गलत नहीं है वो, लेकिन ग्राफ में तकलीफ होती है। y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू -3 -6 अपॉन नीचे कितना 3। whenever the signs are facing face to face, do the multiplication of sign first। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस 6 अपॉन 3। इट implies, बोलिए y इज इक्वल टू कितना आएगा? 18 अपॉन 3। इट implies y इज इक्वल टू कितना आएगा रे? 6। जब y की वैल्यू, जब x और y की वैल्यू, ये ऑर्डर पेयर कहते हैं इसको, गेटिंग? पहले x बाद में वैल्यू y। जब x की वैल्यू क्या भरेंगे हम? जब x की वैल्यू, जब x की वैल्यू -3 भरेंगे तो y की वैल्यू 6 मिलेगी। गेटिंग एवरीवन? y की वैल्यू 6 मिलेगी। और बोलिए, बस आखिरी एक सॉल्यूशन निकालते हैं, ऑल ऑफ यू बोलिए एक आधा। सर इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा? हमारा चैप्टर जस्ट स्टार्ट हुआ है ओम, इसको मैं बताता हूँ कैसे आएगा। तो क्वेश्चन पहले हम कंसेप्ट तो पढ़ ले। ओके, समझ में आया ओम? ठीक है क्या? इफ x इज इक्वल टू, बोलिए रे, x इज इक्वल टू, बोलो x इज इक्वल टू, बोलो क्या लू? बोलो रे, ओए बोलो, बोलो x इज इक्वल +3। ठीक है, चलो x इज इक्वल टू +3 लेते हैं, x इज इक्वल टू +3 रहते हैं। y इज इक्वल टू कितना है? 12 माइनस 2x है, अपॉन कितना आएगा? 3। इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, बोलिए 12 माइनस, नाउ टेल मी, 12 माइनस 2 इंटू कितना आएगा? x की वैल्यू 3 अपॉन कितना आएगा? 3। इट इम्प्लाइज 12 माइनस, बोलो 12 माइनस 2 3 था कितना आएगा? 6 अपॉन 3। इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 12 minus 6, that is 6 upon 3 is equal to 2। Getting everyone? Y is equal to 2। It implies x और y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या भरेंगे हम? x की वैल्यू क्या भरेंगे? जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 2 होगी। अब ये x और y की वैल्यू तीनों इसमें जो हमने निकाली है ना, वो सभी आप इक्वेशन में पुट करके देखना, आपको LHS इज इक्वल टू RHS मिलेगा। समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ रे? गेटिंग एवरीवन? अब मेरे को बताइए, ये हमने निकाल तो लिया,
मेरे को बताइए, जैसे जैसे हम x की वैल्यू मिलता भरते जा रहे हैं वैसी वैसी y की वैल्यू मिलेगी। मेरे को बताओ ऐसे कितनी वैल्यूज ले सकते हैं हम x की, बोलो कितनी वैल्यूज ले सकते? ओए बोलो रे। इनफाइनाइट वैल्यूज वी कैन टेक। हमने इंटीजर्स वैल्यूज क्यों ली? क्योंकि इसका कारण है हमको ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करना है। ओके एवरीवन, कैसे रिप्रेजेंट करना है मैं आपको बताता हूँ, याद तक के लिख लेना तो सभी लोग। ओके एवरीवन, कैसे रिप्रेजेंट करना है तो मैं आपको बताता हूँ। पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्या क्या? हाँ अग्रणी बोलो। बार पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन तो दिया हुआ है, काय को बनाना पड़ेगा? अग्रणी इक्वेशन नहीं, फॉर्मूला बोल। कौन सा फॉर्मूला? अग्रणी लिखा 3y is equals to 12 minus 2x। हाँ वो फॉर्मूला नहीं है। हाँ वो इसको क्या बोलते हैं कि x की वैल्यू एक तरफ और पूरा टर्म एक तरफ, समझ में है क्या? वो हाँ वो बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? अरे मेरे को बताओ, यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू 0 बनाएंगे ये इस इक्वेशन में, तो गलती होने के बहुत चांसेस है कि नहीं? है कि नहीं? बताओ तो। बताओ तो। और मेरे को बताओ अग्रणी, एवरीवन, अग्रणी के माध्यम से सभी को मैं बताना चाहूंगा कि हम जब वेरिएबल वाला एक वेरिएबल एक साइड और पूरा बाकी का बचा हुआ एक साइड जब जब हम लेते हैं, जब जब हम ले लेते हैं एक वेरिएबल एक साइड और पूरा बचा हुआ जो है वो, जब जब हम एक साइड लेते हैं क्या करते हैं? एक साइड लेते हैं, क्या होता है रे फिर? एक साइड हम जब जब लेते हैं तो क्या होता है? मेरे को बताइए, हमको पता चलता है कि इंटीजर्स वाली वैल्यू हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटीजर्स वाली वैल्यू सिलेक्ट कर पाएंगे तो ही तो ग्राफ पे अच्छे से लोकेट कर पाएंगे ना अग्रणी? हाँ क्या? हाँ इसीलिए देखो, हम लीनियर इक्वेशन इन 1 2 वेरिएबल एक ही इक्वेशन की बात कर रहे हैं। दो पे अभी तक क्या हम आने के हैं? दो पे आने के हैं। जिनके पास ग्राफ होगा ग्राफ बुक हाथ में लीजिए या तो ग्राफ पेपर हाथ में लीजिए। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, कोई नहीं है, कोई कहाँ पे जाना नहीं, लॉकडाउन चालू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा आपने? x, y इज इक्वल टू? अरे वो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स का सिंबल है। ओके, कोऑर्डिनेट्स को इक्वल टू नहीं लिखा जाता, वो ऐसे तीन पैरेलल लाइंस के फॉर्म में लिखा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट ईयर चैप्टर था ना, कोऑर्डिनेट्स को इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, वैल्यूज है, दैट इज x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 6। ऑल ऑफ यू हैव रिटन, होप सो। सर हाँ बोलो। सर अगर फ्रैक्शन में रहा x और y कोई भी, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? कर सकते हैं, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो स्ट्रेट लाइन निकलती है ना लीनियर इक्वेशन की, तो उसमें दिक्कत आने के चांसेस है। तो हम अवॉइड करेंगे ऐश्वर्या की फ्रैक्शन में ना आए। समझ में आया क्या? ओए तो सर एक बार बता दो ना कि कैसे निकलते करके, मतलब फ्रैक्शन में। हाँ कोई भी वैल्यू लो, x की वैल्यू कोई भी लो, मन में आए वो बोलो। -1 if x is equal to -1, 12 into 2 into 2 into -1 upon 3 is equal to, गड़बड़ हो गई, रुको, फ्रैक्शन में गलत नहीं है,
12 माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3 इज इक्वल टू 14/3। अब मेरे को बताओ y इज इक्वल टू 14/3, y इज इक्वल टू 14/3। मेरे को बताओ x की वैल्यू कितनी है? अगर ये ऐश्वर्या -1 14/3। अरे मेरे को बताओ ये ग्राफ है आ? ये ग्राफ है। अब सब 14/3 का रिकरिंग में जाता है तो एग्जैक्टली हम लोकेट कर पाएंगे क्या पॉइंट? एग्जैक्टली नो सर। नहीं, इसलिए हम फ्रैक्शंस को अवॉइड करेंगे। समझ में आया क्या ऐश्वर्या? हाँ, 0 और 4 को हम एग्जैक्टली लोकेट कर पाते कि नहीं कर पाते? 0 4 जो हमारी वैल्यूज आई है उसको लोकेट कर पाते कि नहीं कर पाते? हाँ सर। हाँ, इसीलिए चलो हो गया क्या सभी का? आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ग्राफ ऑफ 2x + 3y इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट हेडिंग देना ऑल ऑफ यू। ग्राफ ऑफ 2x + 3y इज इक्वल टू 12। निकाले हाँ, तो जितने जीरो निकाले उतने रिप्रेजेंट भी करने पड़ेंगे ना? हाँ, जीरोस नहीं, सॉल्यूशन कहते हैं इसको। इसमें जीरो सिर्फ पॉलिनोमियल्स में होता है, अग्रणी ध्यान में रखना। ओके, हाँ, सॉल्यूशंस। ओके, ठीक है। जितने सारे के सारे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। जो कर सकते हैं प्लीज रिप्रेजेंट करिए ग्राफ पे। ओके, और मैं को बताइए, रिप्रेजेंट करिए ग्राफ पे। मैं भी रिप्रेजेंट करता हूं। ओके, मैं लिख लेता हूं पहले कौन से आए हैं। 0,4 पहला आया है, 0,4 12 - 2x 0,4। दूसरा आया है -3,6 और चौथा आया है 3,2। पहले टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद में रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ लिसन एवरीवन प्लीज। ओके, ग्राफ ऑफ, ओके ऑल ऑफ यू जो कर सकते हैं वो आगे बढ़िए और ग्राफ निकालिए इसका। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 12। जो वैल्यूज आई है ना आदित्य, उसी का ग्राफ निकालना है। सर इसमें एक ही मेथड है ना, ट्रायल एंड एरर? नहीं, ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं है ये। ओए हेलो, सर उसमें सर फ्रैक्शन में भी तो निकाल सकते, पर वो आप बोल रहे हो कि हाँ, उसको रिप्रेजेंट एग्जैक्टली नहीं कर सकते ग्राफ पे। मैं अभी बताता हूँ ना, ग्राफ निकालेंगे। देखो अभी अपना ग्राफ ऑफ 2x + 3y इज इक्वल टू 12। नाउ लुक एट एवरीवन, क्यों नहीं कर सकते फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन कितना तकलीफ होता है फ्रैक्शन में। ग्राफ ऑफ 2x + 3y इज इक्वल टू 12। ग्राफ ऑफ 2x + 3y इज इक्वल टू 12। नाउ लिसन एवरीवन, सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे ऐसा, और उसमें x की वैल्यू, x और y की वैल्यू रखेंगे। मेरे को बताइए, x और y की वैल्यू रखेंगे उसमें। गेटिंग एवरीवन? x और y की वैल्यू रखेंगे। नाउ लिसन एवरीवन प्लीज, ये टेबल बनाया हमने। मेरे को बताओ ये x और ये y की वैल्यू, यहाँ पे x और y की वैल्यू। जब जब x की वैल्यू 0 रहेगी तो y की वैल्यू 4 रहेगी, और x और y 0,4 रहेगा। टेबल स्केल से बनाने की जरूरत नहीं है, हाथ से भी बना सकते हो। x की वैल्यू -3 रहेगी, y की वैल्यू 6 रहेगी, तो x और y की वैल्यू -3,6 रहेगा। x की वैल्यू 3 रहेगी, y की वैल्यू 2 रहेगी, तो xy की वैल्यू 3,2 रहेगा। ऑल ऑफ यू बराबर है? ये हमने निकाले हैं। इसको अभी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखना। ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखना। ओके एवरीवन, नाउ लिसन, हमने टेबल बनाया, लास्ट टाइम की वैल्यूज है। ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज लुक एट एवरीवन प्लीज। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन निकालिए, एक वर्टिकल लाइन निकालिए, साथ में चलना सभी लोग। साथ में चलिए सभी लोग। अब मेरे को बताइए, ये 0 जहां पे ओरिजिन होता है, हाँ ओरिजिन होता है। अब देखना जरा एडजस्ट करना इसको, 0,4 इक्वल होना चाहिए। अब मेरे को बताइए, वह 0 और 1 के बीच में जिसके पास ग्राफ होगा उसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। जिसके पास ग्राफ नहीं है, 0 और 1 के बीच में का अंतर जितना होगा स्केल की मदद से निकालिए।
1 और 2 के बीच में का अंतर उतना ही होगा, उतना ही अंतर 2 और 3 के बीच में, उतना ही अंतर 3 और 4 के बीच में, उतना ही अंतर 4 और 5 के बीच में। राइट हैंड साइड पे पूरे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे पूरे नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये होगा -1, ये होगा -2, ये होगा -3, ये होगा -4, ये होगा -5। ऑल ऑफ यू आर अवेयर, बराबर है। ऊपर की साइड में देखे तो ये कितना होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये y डैश, ये नाम देना बहुत जरूरी है। अगर ये आपने नाम नहीं दिया x डैश y डैश तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ध्यान में रखना। 1 ये कितना होगा, 2 ये कितना होगा, 3 ये कितना होगा, 4 ये कितना होगा, 5। जितने आते हैं उतने करना, लेकिन जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाने चाहिए। ऊपर देखना 6 तक के गया है हमारा, 6 कहाँ पे लोकेट होगा, अब सोचिए। अभी y कोऑर्डिनेट 6 है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज x कोऑर्डिनेट, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज y कोऑर्डिनेट। ऑल ऑफ यू आर अवेयर। ये देखना 6 जा रहा है, x की मैक्सिमम वैल्यू देख लेना और y की मैक्सिमम वैल्यूज देख लेना। ओके एवरीवन, ठीक है। तो वो 6 आप लोकेट कर देना। 3 नीचे कितना आएगा, नीचे कितना आएगा, -1 -2 -3। नेगेटिव वैल्यू मैक्सिमम कितनी है x की, -3 है, तो ठीक है -4 तक के जाएंगे, बस काफी है वो। यहां तक के आ गए क्या सभी लोग? ओए हाँ सर। सभी लोग, चलो अब कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो 9th स्टैंडर्ड का 3rd चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऑल ऑफ यू आर अवेयर। हाँ, अब कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करेंगे 0,4। मेरे को समृद्धि माइक ऑन करो अपना, समृद्धि समृद्धि समृद्धि, हेलो समृद्धि, यस यस सर। हाँ, मेरे को बताओ 0,4 कहाँ पे होगा? 0,4 कहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? पहला कोऑर्डिनेट है 0,4, ये देखो एक्स एक्सिस पे। दिमाग ठिकाने पे रख के बताओ। हेलो एवरीवन प्लीज। सर हाँ बोलो। डन सर, हो गया। ओके फाइन। 0,4 कहाँ पे होएगा रे, बोलो। y एक्सिस पे आएगा 0,4। when the x coordinate is 0 then the point lie on the y axis, positive y axis पे आएगा। all of you agree ना? हेलो, पॉजिटिव y एक्सिस पे आएगा when the x coordinate is 0। इसको नाम देना 0,4। ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज 0,4। गेटिंग एवरीवन 0,4। समृद्धि समझ में आ रहा है क्या तुमको? यस सर। ओके फाइन। नाउ लिसन, अब -3,6, this is something called as the first quadrant, this is something called as the first quadrant, this is something called as the second quadrant, this is something called as the third quadrant, this is something called as the fourth quadrant, this is something called as the positive x axis। ये ऊपर वाला पॉजिटिव y एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिव x एक्सिस, डाउनवर्ड वाला नेगेटिव y एक्सिस। ऑल ऑफ यू प्लीज। -3,6 कौन से क्वाड्रेंट में लाया होगा रे? यस सोहन है क्या क्लास में? सोहन 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 है क्या क्लास में? क्लास में नहीं है। क्लास में नहीं है, फाइन। पवन मेरे को बता -3,6 कौन से क्वाड्रेंट में लाया होगा रे? ओए क्या सर? -3,6 कौन से क्वाड्रेंट में लाया होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बता। सेकंड क्वाड्रेंट में, वेरी गुड। -3,6 सेकंड क्वाड्रेंट में लाया होगा। आप लोकेट करना एग्जैक्टली। ओके, -3,6 को मैं लोकेट नहीं करता क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, आप लोकेट करना चलेगा। समृद्धि ओके,
3,2 मेरे को बताइए 3,2 अथर्व है क्या क्लास में? 3,2 अथर्व 3,2 अथर्व नहीं है सर। अथर्व पिछला मैंने दिया था। ओके फाइन 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 आई कम टू नो। ठीक है नाउ लिसन प्लीज। नेक्स्ट अग्रणी मेरे को बताओ 3,2 कहाँ पे लाया होगा? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जैक्ट लोकेट करना। एक्स कोऑर्डिनेट 3 वाई कोऑर्डिनेट 2। ठीक है ना, मैं एग्जैक्ट लोकेट कर रहा हूं। आप -3,6 लोकेट करना। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड। ठीक है ना ओम, तेरे को समझ में आ रहा है ना? 3,2 ऐसे इसको बराबर ऐसे लोकेट करो। 3,2 एक चीज ध्यान में रखना कि हमको कोई भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉइंट्स लगते हैं। लाइन 2 पॉइंट से ड्रॉ होती है ना। ओके हमने यूक्लिड बता के गया है हमको। वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू द मैक्सिमम 2 पॉइंट्स। ओके ठीक है ना, फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ओनली वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन। मेरे को बताओ 2 ही पॉइंट चाहिए, 2 के ऊपर। क्या बोलो सर नहीं समझा। क्या नहीं समझा? सर इट शुड बी ड्रॉन ऑन वन लाइन। नहीं मेरे को बता, सिर्फ हमको 2 ही पॉइंट्स लगते हैं एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। 3 पॉइंट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है क्या ओम? हमने 3 इसलिए निकाला चेक करने के लिए। समझ में आया क्या? क्या यस सर। हाँ 2 ही पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। -3,6 आप लोकेट करना। देखो मैं लाइन निकालता हूं अभी। नाउ लुक एट एवरीवन। ठीक है ना, आई एम गोइंग टू राइट। ठीक है देखना कौन सा कलर लो, कोई भी चलेगा। अब मेरे को बताइए ये लाइन है। ओके यू विल गेट इट एग्जैक्टली। ओके ये लाइन है। देखो थर्ड कोऑर्डिनेट आप रिप्रेजेंट करना, वो उसमें से भी जाएगी स्ट्रेट लाइन। मेरे को बताइए ये जो है इसको मैं पूरा एक्सटेंड करता हूं। देखना एवरीवन, देखो कैसे लिखा जाता है लाइन का नाम। मैं आपको बताता हूँ इस कोऑर्डिनेट से कैसे लिखा जाता है लाइन का नाम। ध्यान से देखना ऑल ऑफ यू कैसे लिखा जाता है। यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस लाइन, एरोज देना कंपलसरी है। अब इस लाइन का नाम क्या है रे? ओए क्या है नाम इसका? बोलो तो क्या नाम है? 2x plus 3y equals to 2x plus 3y is equal to 12. 2x plus 3y is equal to 12। इस तरीके से नाम दिया जाता है। लाइन के नाम बीच में कहीं नहीं देना, लाइन को पूरा खींचो आखिरी तक। समझ में आया क्या? जहां तक के जाता और वहां पे लाइन का नाम दो, बीच में कहीं मत दो। 2x plus 3y is equal to 12 इस तरीके से ये होना चाहिए। टेस्ट होगी तो टेस्ट में इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऑल ऑफ यू एग्री? मैं नीचे का मिटा देता हूं, अच्छा नहीं दिख रहा है। समझ में आया क्या? वही ठीक है ना, इस तरीके से लाइन को। अब देखो इसमें से हमको बहुत सारे कंसेप्ट सीखने हैं। ठीक है ना, देखना इधर। ये यहाँ तक के आगे हो गए तो बोलो, धीरे धीरे जाएंगे। ऊपर नहीं लिख सकते क्या लाइन को? लिख सकते हैं ना ऊपर, यस नीचे या ऊपर, लेकिन बीच में नहीं। नीचे या ऊपर, ऊपर एक्सटेंड करो, ऊपर एक्सटेंड करो और इसी साइड में लिखो, नीचे या ऊपर। ठीक है ना, दोनों में से एक जगह पे लिख सकते, कहीं पे भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए हम उसको ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। समझ में आया क्या? हेलो समझ में आ रहा है? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ ऊपर या नीचे कहीं पे भी लिख सकते हैं, लेकिन बीच में मत लिखो, नहीं तो वो अच्छा नहीं दिखता है। स्ट्रेट लाइन आनी ही चाहिए। अब वो जो तीसरा पॉइंट है ना जो मैंने लोकेट नहीं किया है, उसमें से भी वो एग्जैक्टली पास होती है। देखना होती है सर, देखिए। हाँ एग्जैक्टली पास होती है तीनों पॉइंट्स में से, आप देख लेना। ओके इस तरीके से हमको रिप्रेजेंटेशन करना है। देखो हम अभी हमने इसमें से क्या पढ़ा है, सभी लोगों का हो गया क्या? सोहन है क्या रे क्लास में? गायत्री, यस सर। गायत्री हाँ यस ओके। इसमें से हमने क्या पढ़ा? अब देखिए ऐश्वर्या, लाइन जो थी वो 0,3 था। हाँ 0 को कहाँ पे? हाँ सर थर्ड, हाँ सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। हाँ 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 3,2 है ना सेकंड।
सेकंड वाला -3,6 ये मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, ये आपको रिप्रेजेंट करना है क्योंकि मेरे यहाँ पे जगह नहीं थी। ओके, उसमें भी अगर रिप्रेजेंटेशन में किसी को कोई दिक्कत होगी तो मेरे को बोलना, ठीक है। और वो तीनों पॉइंट से स्ट्रेट लाइन जाती है और उसको हमने नाम दिया 2x + 3y। देखो मैं अभी आपको आता है, अरे मेरे को बताओ, अगर हमको फ्रैक्शन में मिलता था ऐश्वर्या, अगर x की वैल्यू हम भरते थे कुछ भी जो मन में आए वो, और y फ्रैक्शन में मिलता था या तो x फ्रैक्शन में मिलते थे, तो हम एग्जैक्टली लोकेट कर पाते थे क्या ऐश्वर्या? देखो तो सभी को मैं बोल रहा हूँ, नहीं। अब 14/3 नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, 0 पॉइंट समथिंग सॉरी वो समथिंग 3 बार आएगा वो, तो कहाँ पे उसको लोकेट करेंगे, कहाँ पे वो अप्रोक्सीमेट नहीं हमारे पास है ना। दूसरी चीज, हम x की वैल्यू 9, 10 वगैरह हमने क्यों नहीं ली? x की वैल्यू 9, 10 वगैरह वगैरह क्यों नहीं ली? अरे मेरे को बताओ, ग्राफ हमारा छोटा सा है, उसमें वैल्यू कब तक के आएंगे? ऊपर 10 नीचे 10 ज्यादा से ज्यादा। बहुत बड़ा ग्राफ हो गया तो आजू बाजू में 10-10, उससे ऊपर नहीं जाता ना, इसलिए हम 5 या 6 या 7 मैक्सिमम वहां तक के जाएंगे। ओके, तो ये हमारा कंसर्न रहना चाहिए और हमारी नजर होनी चाहिए कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। देखो मेरे को y की मैक्सिमम वैल्यू तक के ध्यान नहीं गया, इसलिए मेरे से ये गलती हो गई, आप ये गलती मत करना प्लीज। ओके, अब इस पे हम देखो, अब जरा ग्राफ को ऑब्जर्व करना। ओके एवरीवन, हो गया क्या सबका? हो गया क्या? ऑल ऑफ यू आई एम कमिंग बैक। हाँ सर, हो गया। हाँ बोलो। हाँ सर, अगर 2 डिजिट रहती थी वैल्यू तो हम स्केल को तो बढ़ा सकते थे। स्केल को तो हाँ, तो वो जरूरत पड़ने पे बढ़ाएंगे ना, लेकिन वो सेम बढ़ाना पड़ता है एक्स और वाई एक्सिस पे, सेम बढ़ाना पड़ता है एक्स और वाई एक्सिस पे, ठीक है। बढ़ा सकते हैं हम, बढ़ा सकते हैं ना, लेकिन वहां पे स्केल लिखेंगे, वैसे प्रॉब्लम देखेंगे ना हम, देखेंगे। यादनेश हो गया क्या रे तेरा? यादनेश ओके। सोहन आज ज्वाइन ही नहीं हुआ क्या? सोहन नहीं सर, सोहन ज्वाइन ही नहीं हुआ, और कौन ज्वाइन नहीं हुआ? ओके फाइन, अल्लाह यू हैव डन, ठीक है। चलो कैसे सिलेक्ट करना है वैल्यूज को ये समझ में आया। अब मेरे को बताइए, लाइन को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए, लाइन को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए किसका सहारा लिया? लाइन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किसका सहारा लिया बोलो? ओए पॉइंट्स का। पॉइंट्स नहीं, किसका? और बोलो, पॉइंट्स तो लिया, उसको क्या बोलते पॉइंट्स को? वेरी गुड, सॉल्यूशन का सहारा लिया। किसका सहारा लिया? सॉल्यूशन का सहारा लिया। ऐसे हम कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं 2x + 3y = 12 के? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते। मेरे को बताओ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल सकते। एक लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्यों होते हैं? ग्राफ के माध्यम से आप देखिए, एक लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्यों होते हैं? ग्राफ के माध्यम से देखिए। ये जो लाइन है, लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं रे? कितने पॉइंट? इनफाइनाइट, हम गिन नहीं सकते। जिस लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो मेरे को बताओ, अब अगर मैं ये पॉइंट लोकेट करूँ, ये पॉइंट मैं लोकेट करूँ, ये भी क्या होगा इसका? देखो मैं कलर चेंज करता हूं, येलो कलर, येलो कलर, ये क्या होगा? इस लाइन का ये क्या होगा रे? क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ये क्या होगा? क्या होगा रे? ओए क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ये क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। मतलब लाइन पे जो भी पॉइंट है वो क्या होगा? क्या सॉल्यूशन हो गए। इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर एंड ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ, ऑन द ग्राफ मतलब ऑन द लाइन ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ऑल ऑफ यू प्लीज 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 डू लिसन केयरफुली। लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है वो सभी पॉइंट्स ये ग्राफ के, ग्राफ बोलने के बाद में लाइन, लाइन के सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी पॉइंट लो लाइन का, that point represents the solution of, that point represents the solution, that point represents
द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 12। सॉल्यूशन की मदद से ग्राफ निकलता है, गेटिंग? तो ग्राफ की मदद से सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं, ध्यान में रखना। गेटिंग एवरीवन? अब एक पॉइंट लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एक पॉइंट लिखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ओके, एवरी पॉइंट मेरे साथ में लिखना, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ, ग्राफ बोले तो लाइन, ओके, ग्राफ बोले तो लाइन, ग्राफ बोले तो ग्राफ पेपर नहीं, लाइन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऑफ लीनियर इक्वेशन into variable represents, देखो ये 9th में पढ़ा होगा आपने, represents the solution of the linear equation into variable, represents the solution of the linear equation into variable। समझ में आएगा रे? solution of the linear equation into variable क्या होगा? solution of the linear equation into variable, most important point। ये जो ग्राफ है, ग्राफ में जो भी पॉइंट है, जो भी पॉइंट लाइन के ऊपर आ रहा है, वो हर एक पॉइंट उस ग्राफ का क्या रहेगा? सॉल्यूशन रहेगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का। हेलो एवरीवन, समझ में है क्या? हर एक पॉइंट ये क्या रहेगा? सॉल्यूशन रहेगा। ऑल ऑफ यू एवरीवन प्लीज। क्या सर ये लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगी क्या? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री 1 है, समझ में आया क्या? ओके, लीनियर मतलब स्ट्रेट होता है ना, इसीलिए तो इसको लीनियर इक्वेशन बोला है ना। मतलब उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो, ठीक है ना, तो उसका क्यों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहते हैं इस ग्राफ के, ये समझ में आया क्या? क्योंकि इस लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होने के कारण हर एक पॉइंट इस लाइन पर का, हर एक पॉइंट इस लाइन पर का क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने के कारण इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ओके एवरीवन, ठीक है, 9वीं में पढ़ा था, मैं आपको बता रहा हूं, मैं उसी को दोहरा रहा हूं, बस, बाकी कुछ नहीं। एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ लीन, हाँ बोलो। हाँ सर, पॉलिनोमियल्स में भी सॉल्यूशन मतलब जीरोस इनफाइनाइट हो सकते हैं ना? नहीं, अरे उसका क्या है मेरे को बताइए, वो कैसे होता है? वो पॉलिनोमियल्स का पैराबोलिक शेप बनता है, और उसका क्या होता है? एक्स एक्सिस पे जहां पे वो कट करता है ना, वही उसके सॉल्यूशंस होते हैं। समझ में आया क्या? वो पैराबोला ऐसे हम निकालते हैं, तो इसका वैसा नहीं है, लीनियर इक्वेशन का वैसा नहीं है। गेटिंग एवरीवन? लेकिन वो पैराबोला का क्या है, वो जब हम निकालते हैं ना, जहां पे वो एक्स एक्सिस पे कट अगर करता है, तो वो उसके रियल सॉल्यूशंस रहते हैं। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है सर, तो फिर पैराबोला तो फिर दो ही ज्वाइन करेगा, तो फिर 2 ही जीरो होंगे क्या उसके? हाँ, 2 ही जीरो हो गए, इसीलिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जब हम बनाते हैं तो वो पैराबोला बनता है ना। समझ में आया क्या? गेटिंग एवरीवन? 2 ही जीरो होते हैं ना, इसीलिए तो 2 जीरोस होते हैं, इसीलिए तो उसको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता बोलते हैं। ओके एवरीवन, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तुमको, वो 11वीं 12वीं में है, लेकिन लीनियर इक्वेशन का है। समझ में है क्या? ऐसे जाते हैं, डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल बाद में, सॉरी डिग्री 1 वाला इक्वेशन बाद में, डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल बाद में, डिग्री 3 वाला, ऐसे 10वीं 11वीं 12वीं ऐसे आगे बढ़ता है। हाँ बोलो, और कोई? सर लास्ट ईयर वो एक क्वेश्चन था ना, रिप्रेजेंट अंडर रूट 2 ऑन ग्राफ। अरे वो रियल नंबर्स है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना और लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना अलग अलग है ना। लास्ट ईयर इसका वो एक चैप्टर ही था ना, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। लास्ट ईयर तो इंट्रोडक्शन हुआ इसका, समझ में आया? ठीक है, ओके। इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना कैसे? ओके, हाँ बोलो। हाँ, जब LHS is equal to RHS रहेगा तो ही लाइन स्ट्रेट आएगी ना? नहीं, मेरे को सवाल तुम्हारा, LHS इज इक्वल टू RHS रहेगा तो सॉल्यूशन रहेगा, हाँ लाइन स्ट्रेट आएगी, बराबर है। LHS इज इक्वल टू RHS, हाँ
ये तो सही है कि LHS इज इक्वल टू, तभी वो लाइन स्ट्रेट आएगी, इसका मतलब वो जो पॉइंट्स है उसमें से लाइन पास होगी। नहीं तो तुम उटपटांग जैसे कोई भी कोऑर्डिनेट्स लोगे ना, आप उसमें से जबरदस्ती लाइन पास करने की कोशिश करोगे तो वो स्ट्रेट नहीं बनेगी ना अग्रणी, क्या? Yes. हाँ, तो ये सभी चीजें, तो वो हम ट्रायल एंड एरर मेथड से हम एक्स और वाई वैल्यू भर के हम LHS इज इक्वल टू RHS सेटिस्फाई हर एक बार नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, y को एक साइड लेंगे या तो x को एक साइड लेंगे, जो इजी होगा वो, और हम वैल्यूज भरते जाएंगे। Okay everyone, this is every point on the graph, that is line of the linear equation in two variable, representing equation in variable 2 in 2 लिखना भूल गया, represent the solution, हर एक पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन में का हर एक पॉइंट अब चेक कर लेना। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 का क्या निकलेगा, वो फ्रैक्शन में भी रह सकता है, वो इरेशनल नंबर भी रह सकता है, क्या निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा, सेटिस्फाई करेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 को, सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या करेगा, LHS इज इक्वल टू RHS देगा। ओके एवरीवन, ओके, इस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है, पहला नियम, लीनियर इक्वेशन को जब रिप्रेजेंट करेंगे तब x को एक साइड लेंगे या तो y को एक साइड लेंगे, जो इजी होगा उसको, x इजी होगा तो x, नहीं तो y इजी होगा तो y। बाद में क्या करेंगे, x की बाद में क्या करेंगे, जो x यहाँ पे राइट हैंड साइड में है तो x की वैल्यू जैसे जैसे भरेंगे वैसी वैसी y की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू इसी तरीके से हम भर सकते हैं, x की वैल्यू इसी तरीके से हम भरेंगे ताकि न्यूमरेटर का ऑपरेशन करने के बाद वो 3 से डिवाइड हो, और ऐसी ही वैल्यूज लेने की कोशिश करेंगे ताकि वो 0 और 6 के बीच में लाए हो, क्योंकि ग्राफ में हमारे 0 और 6 के बीच में होता है। वैल्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो हम स्केल लेंगे, स्केल किस तरीके से लेंगे हम आगे की प्रॉब्लम में देखेंगे। फाइन एवरीवन, जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे, ये सिंपल प्रॉब्लम था, कंसेप्ट बताने के लिए मैंने लिया ना। लिसन एवरीवन, अब मेरे को बताइए, यहाँ पे एक मैं इक्वेशन लेता हूं, चलो x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, आप LHS में x रखोगे कि y रखोगे रे ओए, LHS में x रखोगे कि y रखोगे, x रखोगे, y भी रखा तो चलेगा, लेकिन हम डिनोमिनेटर में कुछ आए ना तो दिक्कत होता है। x इज इक्वल टू 5 प्लस 2y बराबर है, सीधी बात, नो बकवास। अब मेरे को बताइए इफ, अब मेरे को बताओ y की वैल्यू भरोगे कि x की वैल्यू भरोगे रे, ओए बोलो, y की वैल्यू 0 भरेंगे, x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इंटू 0, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा 5। जब y की वैल्यू 0 रहेगी तो x की वैल्यू 5 रहेगी, बराबर है। इफ y की वैल्यू भरो, बोलो y की वैल्यू क्या भरू, कुछ भी भर सकते हो, √2 √5 मत भरना, -1 भर सकते हो। यहाँ पे कोई लिमिटेशन है क्या रे कि भाई रिमाइंडर से डिवाइड होना चाहिए करके, नहीं, y की वैल्यू माइनस भरो, x की वैल्यू भी इंटीजर ही मिलेगी। समझ में आया, काफी इजी है। अगर आप बोलोगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 ऑलरेडी है तो इसको छेड़ोगे क्या आप, छेड़ोगे क्या, ओए इसमें कोई इंटरचेंज करोगे क्या, नहीं, डायरेक्ट x की वैल्यू भरेगी, डायरेक्ट क्या करेंगे, x की वैल्यू भरेगी। हमारा एक वेरिएबल एक साइड होगा तो कोई फालतू छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट हो गया हमारा, ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी अब मेरे को बताइए, ठीक है, और अगर y 2y है तो 2 डिनोमिनेटर में हो जाएगा और फिर y की वैल्यू आ जाएगी तो आंसर सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर में 2 आने के बाद में वो कैसा है, फिर चुन चुन के वैल्यू चूज करनी पड़ती है हमको। समझ में आया क्या वो, ओके, यस एक एवरीवन, ठीक है ना। लिसन एवरीवन, अब हम आते हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड की टॉपिक की ओर, दैट इज गिव द हेडिंग गाइस, प्लीज गिव द हेडिंग सभी लोग। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर बोले तो बोलो, पेयर बोले तो क्या होता है रे, पेयर बोले तो पेयर बोले तो 2। अब मेरे को बताओ, हमने अभी तक के क्या पढ़ा कि अकेला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है। अब क्या पढ़ेंगे हम कि 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होते हैं।
ठीक है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होते हैं? इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ, इक्वेशन विच इज in the form of general form of. Now look at everyone, equation which is in the form of a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. ये a1 b1 c1 लेना पड़ेगा क्योंकि दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ दो लीनियर इक्वेशन। दूसरा a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। और अब मैं और दूसरा बताता हूं, गेटिंग एवरीवन, a1x प्लस b1y, कभी कभी ए बी तो हो सकता है, कांस्टेंट राइट हैंड साइड रहेगा। तो फिर अगर कांस्टेंट राइट हैंड साइड है तो दूसरे जो इक्वेशन है उसका भी कांस्टेंट राइट हैंड साइड ही रहना चाहिए। ओके एवरीवन, ये कंडीशन है। गेटिंग एवरीवन, a1x प्लस b1y। ओके एवरीवन, ओके ठीक है। अब मेरे को बताइए, ठीक है ना, अब मेरे को बता इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ओके वेयर, अब मेरे को बताओ इसमें कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ये क्या कंडीशन है मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। ये लिख लेना ये अच्छे से, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज राइट डाउन दिस वन, ठीक है ना। ये भी एक फॉर्म है और ये दूसरा फॉर्म है। इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस, देखो पेयर, अभी तक के हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी, उसका पेयर, पेयर बोलने के बाद में दोनों जगह ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 थोड़ी ना लिख सकते। हम लिख सकते क्या? लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते। इसलिए वेयर, अब देखना मैं आपको लिखाता हूं वेयर, क्या होगा वेयर, कंडीशंस होगी इसमें, वेयर a1 b1 c1, ओके, एंड a2 b2 c2 क्या हो गए? रियल नंबर्स हो गए, रियल नंबर्स क्या हो गए? रियल नंबर्स क्या हो गए? रियल नंबर्स हो गए। बाद में कंडीशन फिर से वही कंडीशन, a1 स्क्वायर, ओके, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, ओके एवरीवन, इज नॉट इक्वल टू 0, एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होनी चाहिए। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज राइट डाउन। Done everyone? सर वो a1 स्क्वायर क्यों लिखा? नहीं, वो कंडीशन है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a1 का स्क्वायर और b1 का स्क्वायर का एडिशन करने के बाद वो 0 नहीं रहना चाहिए, तभी वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनते हैं, वरना नहीं बनते। देख लेना बना के, नहीं बनेंगे कंफर्म। डन सर। Done, all of you. Sir, 2 minutes. Hello everyone, please. डन सर। All of you. अब मेरे को बताइए, जब हम एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई कंडीशन नहीं बनती, वो कहीं पे भी रिप्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब दो लाइंस को, दो स्ट्रेट लाइन को, ये भी लीनियर इक्वेशन है
और ये भी लीनियर इक्वेशन है। दो स्ट्रेट लाइन को जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो दो स्ट्रेट लाइन क्या हो सकती है रे? बोलो बोलो रे, दो स्ट्रेट लाइन क्या हो सकती है? व्हेन पैरेलल हो सकती है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? व्हेन वी रिप्रेजेंट, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी इंटरसेक्टिंग हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पेयर नहीं, परपेंडिकुलर बोले तो इंटरसेक्टिंग हो गया उसमें। और क्या हो सकती है? क्या हो सकती है एक कंडीशन बोलो? सर इनकंसिस्टेंट। बिन फुकट का मेरे को बताओ ओम, वो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पे हवा में हव्यात काय म्हणतो अभी? देखो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मेरे को मराठी आती नहीं, फिर फटाक से हवेत लाता मारल्यासारख्या गोष्टी नाही करायच्या। मेरे को बताओ ज्यादा दिमाग का को दौड़ा रहे तुम? बोलो क्या हो सकती है? तीन पॉसिबिलिटी। हाँ क्या हो सकती है? आपने क्वेश्चन क्या पूछा? मेरे को बताओ जब हम दो है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब दो लाइंस, बराबर है, दो लाइन जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो पहले कंडीशन क्या होगी? द टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, ठीक है ना। इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे होती है, ठीक है ना। ये एट वन पॉइंट लिखना इंग्लिश, एट वन पॉइंट क्या हो सकती है रे ओम? तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? थोड़ा सोच समझ के बोलो। कोइंसिडेंट क्या होता है? कोइंसिडेंट यानी, वेरी गुड, क्या है उस लड़की का नाम? श्रेया, वेरी गुड। ओके, टू लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, वो दो लाइंस क्या हो सकती है? इंटरसेक्ट हो सकती है एक पॉइंट पर। देखिए इधर ये पहली लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई, कहीं पे भी इंटरसेक्ट हो सकती है। ओके एवरीवन, ठीक है ना। नाम दे देते चलो, ठीक है ना। एक का नाम होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे का नाम होगा, कहीं पे भी दो, नीचे या ऊपर, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, बराबर है। उन्हीं में वो इंटरसेक्ट हो सकती है एक पॉइंट पर, बराबर है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है रे? दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? दोनों लाइंस क्या हो सकती है? एक में को जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो बोलो, टू लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल लाइंस हो सकती है, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। तो ये होगा पैरेलल लाइन वाला, देखो ये पहला, पैरेलल लाइन भी आनी चाहिए, इससे निकालता हूं, ये पैरेलल होगी, बराबर है। दोनों लाइंस पैरेलल हो सकती है। ओम समझ में आ रहा है रे? यस सर। ओके, इनकंसिस्टेंट बहुत बात की बात है, हम उसको बाद में देखेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y, दूसरे का नाम है b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, पैरेलल हो सकती है। तीसरी कंडीशन क्या होगी रे? तीसरी कंडीशन क्या होगी? सर पैरेलल मतलब इक्वल? नहीं इक्वल नहीं, पैरेलल्स मतलब इक्वल नहीं होता। सेगमेंट्स आर इक्वल, लाइन कभी इक्वल नहीं होते, ध्यान में रखना। ओए इधर देखना, वो पैरेलल होगी मतलब
रेलवे के रूट नहीं रहते क्या, रेलवे ट्रैक, मेरे को बताओ वो इक्वल रहते हैं क्या? यस सर। वो पैरेलल है, वैसे पैरेलल की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो क्या हो सकती है? तीसरा क्या हो सकती है कंडीशन? परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर तो इंटरसेक्टिंग में आ सकती। Devil, the two lines will overlap on each other. Two lines will overlap on each other. Lines will overlap. OVER, overlap on each other. Overlap उसी को दूसरा नाम है coincident. 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 Okay, coincident. और coincident और क्या कहेंगे उसको? Coincident. Yes, coincident. Okay, will overlap on each other. On each other. मतलब दोनों एक मेक पे लाई होगी, मतलब पहली लाइन जो है वहीं पे दूसरी लाइन आएगी। देखना इधर, मैं निकालता हूं यहाँ पे, दोनों एक मेक पे लाई होगी। ओके ओके, दोनों लाइंस एक मेक पे लाई होगी, मतलब ये भी इसके भी कोऑर्डिनेट्स इसी लाइन पे लाए होंगे और दूसरे लाइन के भी कोऑर्डिनेट्स इसी लाइन पे लाए होंगे। पहला नाम दे देता हूं मैं, पहला नाम a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी भी लाइन इसी पे ओवरलैप होगी, बराबर है ना? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ सर वो येलो था तो दिख ही नहीं रहा। हाँ ठीक है, मैं कलर चेंज करता हूँ। वाला अच्छा हो गया तुमने बता दिया, इसके बाद मैं यूज नहीं करूंगा इसको। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन भी इसी पे ओवरलैप होगी, प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऑल ऑफ यू डन एवरीवन? समझ में आया? 3 कंडीशंस बनेगी। सर हाँ बोलो। सर ऐसे देखा जाए तो सर RHS तो सबके 0 ही है, तो फिर सभी ओवरलैप क्यों नहीं होते? उसका कोई लेना देना ही नहीं है ओवरलैपिंग से। मेरे को बताओ, C1 को राइट हैंड साइड सरका दो, 0 रहेगा क्या? ओए हेलो, ठीक है। अब मेरे को बताओ, जब जब हम कांस्टेंट, अगर पहले इक्वेशन का कांस्टेंट राइट हैंड साइड में है तो दूसरे इक्वेशन का भी कांस्टेंट राइट हैंड साइड में ही चाहिए। ध्यान में रखना, पहले इक्वेशन का कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में है तो दूसरे इक्वेशन का भी कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में ही चाहिए। सर क्यों? आगे पता चलेगा, नहीं तो गलती होती है। ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन ये हम आदत डालेंगे, नहीं तो गलती होती है। All of you have done? नो सर वेट। Okay, fine, fine. I will wait. Do it. रिटर्न सर। सर क्लास कब तक चलेगा? ऐश्वर्या, तुमको पता नहीं है कि 6 के पहले हम छोड़ देते हैं घर के पास 5-10 मिनट आते। सर वेट।
कल हो सके तो ग्राफ का प्रावधान करिए, ग्राफ बुक का प्रावधान करिए। कम से कम 10-15 प्रॉब्लम्स ग्राफ के हो गए, अगर हो सके तो ग्राफ का प्रावधान करिए, ठीक है ना। ग्राफ का प्रावधान करिए कल से, समझ में आ रहा है क्या? ग्राफ की व्यवस्था करिए कल से, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। कल से ग्राफ की व्यवस्था करना मैं आपसे सभी से